Hello students, hope you all are doing well. I am Shubhangi Jain from MM International School, Nayagaon, Kota. Today we will be learning chapter number 2 of your civics portion, that is Prejudice and Discrimination. Chapter number 2, Prejudice and Discrimination. In the previous chapter we have learned about diversity. What are the advantages of diversity? Now it is not always seems like we have only the positive advantages of diversity. Sometimes we have drawbacks also of this diversity. That's why it is not always appreciated. People tend to form certain opinions and attitudes about other people or groups of people based on their reason, caste, religion, etc. The dislike, hostility or unjust behavior that is not based on reason or actual experience is known as prejudice, which often creates disharmony. What happens when in diversity we have different religion, different caste and different regions. So because of that we start hating other community people. So because of that the dislike, hostility and unjust behavior prevalent in our society, and this is what we call it as prejudice. So what is prejudice? Prejudice means to see or judge other people in a negative or inferior manner without knowing much about them. Prejudice means when we start judging people, हम उनके लिए अपने कोई false belief बना लेते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई valid reasons नहीं होते हैं. It happens when people have false belief and ideas, और ये कब होता है जब हमारे पास कोई false beliefs and ideas होते हैं. For example, if you think that the English is the most superior language and all other languages are inferior to it, then you are judging other languages and also the people who speak in these languages negatively. What happens when you think that if a person is speaking English, he is superior, and if a person is speaking in his regional language, he is inferior? This is not an right opinion to form about anyone. So when we judge people on the basis of the language they speak, we are judging the language also. When we form an idea or opinion about others without getting to know them properly, it influences our behavior as well as. So जब हमारे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है, हम अपने फॉल्स बिलीफ के बेसिस पे लोगों के बारे में ओपिनियन बनाने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है. We may be rude or unfriendly towards people against whom we feel prejudiced, और हम ऐसे लोगों के अगेंस्ट जिनके लिए हम फील करते हैं कि वो प्रेजुडाइज्ड हैं, उनके लिए हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है, अनफ्रेंडली हो जाता है और रूड हो जाता है. और समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन दैट वी कैन हर्ट देयर फीलिंग्स ऑल्सो. प्रेजुडाइज कैन बी बेस्ड ऑन, प्रेजुडाइज किसी भी चीज़ पे बेस्ड हो सकता है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, द रीजन दे कम फ्रॉम, लाइक ही बिलोंग्स टू मुस्लिम कास्ट और ही इज़ फ्रॉम हिंदू. The reason they come from, like we consider that if a person is coming from Bihar, he must be a criminal. ये हमारे क्या हैं, false beliefs हैं. The color of their skin, we differentiate between people on the basis of the color of their skin, their accent, the language they are speaking and the clothes they wear. If a person is wearing tribal dress, so we consider it as they are illiterate. So how can we overcome this prejudice? The first thing जिसकी जो हमें करना चाहिए इस प्रेजुडाइज को ख़त्म करने के लिए इज़ स्टॉप जजिंग द पीपल. पहली चीज़ जो हमें करना चाहिए, हमें लोगों को जाने बगैर उनको जज नहीं करना चाहिए. वी शुड गिव आवरसेल्फ एंड देम अ चांस टू गेट टू नो ईच अदर बेटर बिफोर वी फॉर्म ओपिनियंस अबाउट देम. इससे पहले कि हम उनके लिए ओपिनियंस बनाएं, उससे पहले ज़रूरी है कि हम उसको जाने और वो हमें जाने. वी शुड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. हमें अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए, उसके कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ के लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट दैम. दिस विल हेल्प इन ब्रॉडनिंग आवर माइंड्स एंड मेक अस रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स एंड ओवरकम प्रेजुडाइज. और इसी की वजह से हमारा माइंड ब्रॉडन होगा और हम बाकी के कल्चर्स को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी शुड ट्रीट पीपल द वे वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड आवरसेल्फ. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि द वे वी वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें, वी शुड ट्रीट अदर्स इन दैट वे ओनली. सो द नेक्स्ट टर्म इज स्टीरियोटाइप्स. व्हाट आर स्टीरियोटाइप्स? A stereotype is a fixed idea or belief that people have about something or someone. Often these ideas are not true. Stereotype means हम किसी के लिए एक fixed image बना लेते हैं जो कि true नहीं होती है. हम किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी person के लिए एक ऐसा fixed idea अपनी mentality prepare कर लेते हैं which is not true. Stereotype like prejudices can be based on factors. Stereotype भी prejudice की तरह ही कई factors पे based होती है, जैसे कि religion, region, gender, economic backgrounds. When we make assumption about a specific group of people, we start believing that all people in that group are like that. हम क्या सोचने लगते हैं कि if a person from that background, from that group is having certain rude behavior, so we start judging their community also कि अगर ये ऐसा है तो इसकी पूरी community भी ऐसी ही होगी. Each group has its own ideas, values and belief. We should respect it. We should strive to understand the difference.
और हर ग्रुप के अपने अपने बिलीव्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, कल्चर होते हैं, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए. Now we have preconceived ideas about them. We should stop preconceiving. Stereotype limit us from looking at each person as a special individual with his or her own talents and skill. Stereotype की वजह से हम सामने वाले की टैलेंट्स को, उसके स्किल्स को नहीं देख पाते हैं, और बिफोर वी स्टार्ट जजिंग दैम, तो हम पहले से उन्हें इतना जज करने लग जाते हैं कि उनके बाकी के बिहेवियर को हम देख ही नहीं पाते हैं. Now the next term is discrimination. What is discrimination? Discrimination emerges when people act on their prejudice and stereotype. It tends to create distinctions between people on the basis of religion, region, caste, economic background, gender, etc. जब हम लोगों को unfairly treat करने लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? Discrimination. और ये discrimination किसके basis पे होता है? जो prejudice और stereotypes हमने form करें. और discrimination भी किसी भी basis पे हो सकता है, maybe on religion, region, caste और economic background or the gender. It means treating certain people in an unfair and disrespectful manner, denying them access to certain rights and privileges that are meant for all the people, or not allowing them to participate in various social activities. इसमें हम लोगों को unfairly treat करते हैं, उन्हें disrespectful manner में treat करते हैं, और उन्हें ऐसी privileges के लिए, ऐसे rights के लिए deny कर देते हैं जो सभी के लिए equally मिलने चाहिए, available होने चाहिए. हम उन्हें मना कर देते हैं that they can't participate in social activities. When people are denied equal opportunities, it prevents them from advancing. और अगर हम लोगों को उन बढ़ने से रोकेंगे तो वो एडवांस नहीं हो पाएंगे, हम उनको राइट्स ही नहीं दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ पाएँ. और इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या होता है, हमारी सोसाइटी में एक ऐसा गैप बन जाता है जिसको फिल करना इम्पॉसिबल हो जाता है. नाउ द काइंड्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. डिस्क्रिमिनेशन किन्हीं भी कोई भी रीजन्स की वजह से प्रिवेल कर सकता है हमारी सोसाइटी में. पीपल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, किन किन बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उनके धर्म के बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कि वो किस लोकेशन से आ रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका जेंडर क्या है, या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, वो रिच हैं या पुअर हैं. We know that India is a land of diversity. Very often these diversity become a source of prejudice, inequalities and discrimination. हमें पता है that India is a land of diversity. यहाँ पे बहुत सारे रीजन, रिलीजन, कास्ट प्रिवेल करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार इन डाइवर्सिटी की वजह से ही हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजुडाइज प्रिवेल करते हैं. नाउ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, कास्ट के बेसिस पे जब हम किसी के साथ अनफेयर मैनर में ट्रीट करें उसे, तो वो क्या होगा? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. इट अकर्स व्हेन पीपल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. जब हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं. इन इंडिया पहले के टाइम पर बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड मैनर में हमारा कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता था. हमारे पास 4 कास्ट हुआ करती थी अर्लियर टाइम्स में, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज. और शूद्राज को हम सबसे लोएस्ट कास्ट कंसीडर करते थे. और ये कास्ट किसके बेसिस पे डिवाइड की गई थी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, की वो किस तरह का काम करते हैं, इस बेसिस पे ये कास्ट डिवाइड की गई थी. एक्टिविटीज सच एज पिकिंग गार्बेज उठाना, कटिंग हेयर एंड क्लीनिंग वर कंसिडर्ड इम्प्योर एंड टास्क ऑफ लेसर वैल्यू. इन सारे टास्क को क्या कंसिडर किया जाता था? कि ये छोटे काम है और इनकी वैल्यू कम है सोसाइटी में. पीपल हु डिड दीज वर सीन एज डर्टी एंड इम्प्योर. और वो लोग जो ये इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते थे उनको हम डर्टी और इम्प्योर कंसिडर करते थे. और ऐसे लोगों को क्या नाम, एक टर्म दी गई जिसका नाम था अनटचेबल्स. दीज वर कंसिडर्ड टू बी द अनटचेबल्स बाय द अपर कास्ट. अपर कास्ट इनको क्या कंसिडर करती थी? कि ये कैसे हैं? अनटचेबल्स हैं. दीज सो कॉल्ड लोअर कास्ट वर नोन एज दलित्स. और इन्हीं लोअर कास्ट को हम क्या कहते थे? एक टर्म दी गई थी इनको, दलित्स. द वर्ड दलित मीन्स पीपल हु हैव बीन ब्रोकन और ऑप्रेस्ड. ऐसे लोग जिनको सोसाइटी से अलग कर दिया गया है, दबाया गया है सोसाइटी के थ्रू, उन्हें हम बोलते हैं दलित्स. दे आर नाउ रेफर टू एज एससीज बाय द गवर्नमेंट. अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए एक अलग टर्म दी है, एससी, शेड्यूल कास्ट. अर्लियर दलित्स वर नॉट गिवन द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द अदर 3 कास्ट. पहले के टाइम पे हम दलित्स को वो सारे प्रिविलेजेस नहीं देते थे, वो सब राइट्स नहीं देते थे जो बाकी की 3 कास्ट को दिए जाते थे. They were not allowed or given the opportunities to improve their position by changing their professions. इन लोगों को हम इनका ऑक्यूपेशन चेंज करने की परमिशन नहीं दिया करते थे. इस वजह से ये अपनी पोजीशन को आगे नहीं बढ़ा पाते थे, ये सोसाइटी में एडवांस नहीं हो पाते थे. They were not given privileges such as, इनको कई privileges नहीं दिए जाते थे, जैसे कि इनको टेम्पल्स में अलाउड नहीं होता था.
एंटर करना, ना ही इनको स्कूल जाने दिया जाता था। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग वेरियस पब्लिक फैसिलिटीज सच एज टेकिंग वाटर फ्रॉम वेल, और कई पब्लिक एक्टिविटीज़ जैसे कि इनको नॉर्मल वेल जहाँ से बाकी लोग वाटर फैच करते हैं वहाँ से इनको फैच नहीं करने दिया जाता था। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले विद और सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ द अपर कास्ट, और इन्हीं के जो चिल्ड्रंस होते थे उनको अपर कास्ट के चिल्ड्रंस के साथ ना खेलने दिया जाता था, ना ही बैठने दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर, इनका बर्थ कब हुआ था? इन 1891 एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1956। वॉज वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट लीडर, ये हमारे इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर थे। और ये कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? महर कास्ट से, जो कि एक पुअर और लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हुए इनकी कास्ट कौन सी थी? लोअर कास्ट थी, महर कास्ट। दस ही वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ह्यूमिलिएटेड एंड इल ट्रीटेड, और इसी वजह से क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे इनको इल ट्रीटमेंट किया जाता था बाकी सोसाइटी के थ्रू। ही कुड नॉट मिंगल विद अदर चिल्ड्रन इन स्कूल एंड हैड टू सिट सेपरेटली, इनको स्कूल में बाकी चिल्ड्रंस के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, ही हैज़ टू सिट सेपरेटली। ही कुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल दैट द अदर चिल्ड्रन यूज, और इनको सेम वेल से वाटर नहीं ड्रिंक करने दिया जाता था जहाँ से बाकी चिल्ड्रंस ड्रिंक करते थे। सो इसी चीज़ के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, और ये लड़े किसके लिए? दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। ये चाहते थे कि हमारी सोसाइटी से अनटचेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, डिमिनिश हो जाए, और ये चाहते थे कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए इन द सोसाइटी। दलित कैटेगरी से सिर्फ यही एक ऐसे थे जो पहली बार इंग्लैंड गए थे और वहाँ से इन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की थी। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वी कैन से अ रूल बुक, जिसमें हमारे रूल्स लिखे हुए हैं दैट पीपल एंड गवर्नमेंट शुड फॉलो। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, उसकी कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया था? डॉक्टर अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और इसीलिए इनको क्या कंसिडर किया जाता है? ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Multiple identities. When we discriminate against someone on the basis of a single aspect, we limit the individual's identity. We all have multiple identities and therefore cannot be judged on the basis of just one factors. हम सबकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो हम किसी को एक आइडेंटिटी के बेसिस पे जज करें, दिस इज़ नॉट अ राइट फैक्टर। Various factors help us to construct our identity like the place we live in and the people around us. कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हमारी पूरी आइडेंटिटी क्रिएट होती है, जैसे कि हम कहाँ रहते हैं और हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। तो हम सिर्फ एक बेसिस पे किसी को जज करें, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। विद माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बिकमिंग ईजियर, देयर इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल हु हैव मल्टीपल एथनिसिटीज, नेशनल आइडेंटिटीज एटसेट्रा। एज सच वी कैन नॉट जज एनीवन ऑन जस्ट वन एस्पेक्ट। अब जैसे जैसे माइग्रेशन और मोबिलिटी ईजी होती गई, कन्वीनियंट होती गई, लोग अपनी आइडेंटिटीज़ में उनकी कहीं ज़्यादा मल्टीपल आइडेंटिटीज़ क्रिएट होने लगी, उनके पास कई ऐसी एथनिसिटीज़ हैं, तो इसीलिए हम उनको एक बेसिस पे जज करें, इट इज़ नॉट लाइक ओके फॉर एवरीथिंग। सो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी. The struggles of Indian for freedom from the British rule also saw the struggle of large groups of people to be treated equally. अब जैसे हमारी इंडिया स्ट्रगल कर रही थी टू टेक फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, सेम टाइम पे इनसाइड आर इंडिया व्हाट वाज हैपनिंग, हमारी इंडिया अंदर ही अंदर किस चीज़ से स्ट्रगल कर रही थी? सभी लोग चाहते थे दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. दलित्स, ट्राइबल्स, वुमेन एंड फार्मर्स फॉट नॉट ओनली फॉर द फ्रीडम बट ऑल्सो फॉर डिग्निटी एंड इक्वलिटी. ये लोग सिर्फ फ्रीडम के लिए ही नहीं, अपनी इक्वालिटी के लिए, अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी लड़ रहे थे. दे फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड इन देयर लाइव्स. दलित ट्राइड टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स. दलित्स ने ट्राई करा कि वो टेम्पल्स में एंट्री ले सके. वहीं फार्मर्स और ट्राइबल्स फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द मनी लैंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड वुमेन डिमांडेड द राइट टू एजुकेशन जस्ट लाइक मैन. और वुमेन्स को क्या चाहिए थी? राइट टू एजुकेशन चाहिए थी, कि उनको भी एजुकेशन का राइट होना चाहिए. When India gained independence from the British rule in 1947, our leaders were aware of the various kind of inequalities that existed in our society. Thus, the Indian Constitution that was framed then provides for equality for all the citizens and does not allow discrimination on any basis. Everyone has given equal rights and opportunities. सो जब हमारा इंडिया को फ्रीडम मिली इन 1947, एट दैट टाइम हमारे लीडर्स अवेयर थे कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस प्रिवलेंट है, हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है. तो उसी वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया वो इसी अकॉर्डिंग फ्रेम किया गया कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो ये अनजस्ट बिहेवियर मैनर में हम ट्रीट कर रहे हैं लोअर कास्ट को, उसे ख़त्म किया जाए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए.
Untouchability has been legally abolished and is punishable crime. The Constitution also provides for upliftment of socially and economically weaker section of the society. और इसी टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बिल्कुल अबॉलिश किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी सोसाइटी के लिए सोशली और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स फ्रेम करे. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस. सो ये हमारी ड्यूटी है दैट वी शुड प्रोटेक्ट आर सोसाइटी सेक्शन दैट आर फ्रॉम द लोअर कास्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर सेक्युलर कंट्री. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ लोगों को फुली राइट दिया गया है दैट दे कैन चूज देयर रिलीजन. पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन. वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं. देयर इज़ नो कंपल्सरी रिलीजन, लैंग्वेज और फेस्टिवल दैट पीपल हैव टू फॉलो. किसी के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि उन्हें यही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा या यही फंक्शन सेलिब्रेट करना होगा. ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी रिलीजन्स हैं, जितनी भी कास्ट है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए. सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. हाउएवर, डिस्पाइट ऑल दिस, इंडिपेंडेंट इंडिया स्टिल विटनेसेस डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी वन of us to strive for equality and to take steps to embrace and respect the diversity of our country. But still in our India, ये सभी चीज़ें, discrimination is still prevalent. For that we have to work as a citizen and we should start respecting other citizens, other people, those who are belonging to the lower caste or those who are doing some manual scavenging work. So as a citizen we should stop discriminating. Thank you, students.